خدا آپ سب کو برکت ہے. آج سیکنڈ سنڈے ہے ایڈونٹ کا، یعنی مسیح کی دوسری آمد کا سنڈے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے مسیح کی پیدائش کی منادی کی جا رہی ہے، اس کے نام کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور اس کی اس خوشی سے ہم لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے جو خدا اپنے بیٹے کی صورت میں ہمیں بخشی ہے. آج پوری دنیا جو سفر کر رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس ایک جو امید ہے وہ خدا مسیح کی ہے، جو ہمیں ہر قسم کی بیماری میں سے، دکھ میں سے، اور تسلی، اور ہمیں ایک نئی سوچ دے سکتا ہے، ایک نئی امید دے سکتا ہے. تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت موسم کے لیے، ان نغمات کے سیزن کے لیے جس میں ہم خداوند کی پرستش کے گیت گا رہے ہیں، اور آسمان پر اس کی کوئر بھی گیت گاتی ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے نام کی گواہی کا باعث بن سکیں. خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کا لکھا ہے پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائی گئی. اور بس اس کا شوہر یوسف جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا کے کلام کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند آسمانی پتا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری رحم، تیرا وفاداری ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیشہ اپنے کلام سے اور اپنے رحم سے ہمیں معمور کرتا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو رحیم خدا ہے، تو دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب بھی ہم تیری حضوری میں آتے ہیں تیرا آسمان کھل جاتا ہے اور تیری رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو رحیم خدا ہے، مہربان خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے، اور ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنی حضوری میں بڑھنے کی طاقت دیتا ہے. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. اس سارے کلام پر پوری دنیا پر خداوند جس وقت سفر کر رہی ہے، خداوند تو سب کو خداوند اس مہلک بیماری سے بچا، اور اس نے خداوند اپنے بیٹے کی خوشی میں خداوند انہیں خوشخبری دے تاکہ تیرے نام کی گواہی کا باعث بن سکے. جتنے لوگ یہاں خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، سنتے ہیں، ان سب کو برکت دے. سب کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے لہو کی ان کے اوپر مہر لگاتے ہیں، اور تجھ سے منت ہے کہ ہر قسم کی بیماری سے تو ان کو محفوظ رکھنا اور اپنے جلال کے استعمال کرنا، کیونکہ خداوند تیرے نام کو جلال ملے، تیرے نام کی عزت ہو. اور خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرا لہو ہم سب کو خداوند پاک کر سکتا ہے، بیماریوں سے بچا سکتا ہے، مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. اور اسی لیے خداوند ہم تیرے لہو کو پکارتے ہیں، تیرے مسا کو پکارتے ہیں، تیرے لہو کو پکارتے ہوئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر، اس ملک پر، خداوند اس پوری دنیا پر تیرے لہو کی مہر لگاتے ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ خداوند تیرے ہی وسیلے سے ہمیں نجات اور خوشی اور شادمانی ملتے ہیں. بڑی برکت ہے، اس کلام کے حصے کو سمجھنے کی توفیق دے، یسوع کے نام سے آمین. یہاں نہایت خوبصورت جو الفاظ یہاں لکھے ہیں وہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. انسان اس دنیا میں بہت سی مشکلات کا شکار ہے، اور اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. وہ بہت سارا سفر کر رہا ہے اس دنیا میں، اور کبھی اس پر بیماری حملہ کر دیتی ہے، کبھی اس کے پاس روزگار نہیں ہے، کبھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور گھر کے حالات ہیں، گھر کے مسائل ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اور ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں جو دن بدن ہمیں جو ہے اپنی اندر گھیرے ہوئے ہیں. لیکن ان سارے حالات میں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھے قوت نہیں ہے، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، میرے لیے اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور انسان کبھی کبھی یہ بھی سمجھتا ہے اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسے حالات میں، جب حالات اس طرح کے چلتے ہیں اور کوئی بھی اس کو نہیں پوچھتا. اور پھر انسان اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے میرے ساتھ کھڑا ہو سکے اور میری مدد کر سکے. اور انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے حالات میں
इंसान अपने आप को बेबस समझता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इंसान जो है वो खुशखबरी जो देती है वो यही खुशखबरी है आज मेरे लिए और आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से। और वो खुशखबरी क्या है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। द लॉर्ड इज विद अस। और ये बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी है मेरे लिए और आपके लिए कि मसीह खुदावंद हमारे साथ है, वो हमेशा से हमारे साथ है। और अब उसने इंसान का रूप बनाकर, रूप लेकर इस दुनिया में आ गया ताकि वो हमें अपनी मोहब्बत में और अपनी रहमत में और अपने फजल में हमें आगे लेके जाए। जब हम खुदा की हजूरी में अपने आप को दे देते हैं और उसके मसा में अपने आप को देते हैं तो फिर हमारा काम खत्म हो जाता है, फिर खुदा की ग्लोरी का काम जो है वो शुरू हो जाता है। मसीह ईमान की ये बुनियादी तालीम है, ये मसीही ईमान है कि खुदा हमारे साथ है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारी केयर करता है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमें हर दुख में से और तकलीफों में से बचाता है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे ऊपर अपना करम किया हुआ है और वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है, वो सब कुछ करने पे कादर है। क्योंकि हम ईमान रखते हैं, ये मसीहत का ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो हमारे साथ है। इमानुएल जो दुनिया में आ गया और वो हमारे साथ है, उसके आसे से, उसकी लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। वो हमें हर दुख में से, हर परेशानी में से निकालता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। लफ्ज जो ये इस्तेमाल हुआ है कि गॉड इज विद अस, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, ये तीन अल्फाज हैं, खुदा हमारे साथ है। और ये वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुए। पुराने अहदनामे में मुकद्दस ईसाया ने इस चीज को बयान किया, ये पेशन गोई थी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और वो खुदा के बेटे की खुशखबरी दे रहा था, वो खुदा की खुशखबरी दे रहा था। और उसी खुशखबरी को वहीं पर जो है खुशखबरी को मत्ती ने उस खबरी को लिया, क्योंकि ये मुकद्दस ईसाया जो था वो पुराने अहदनामे में खुदा की तस्वर को बयान कर रहा था, खुदा की आने वाली जो है पिक्चर पेश कर रहा था। लेकिन मुकद्दस मत्ती रसूल जो है उस चीज को बयान करता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। वही कादर मुतली खुदा को, वही एलोहीम को, वही रफाइल को जो मुकद्दस ईसाया उसकी पेशन गोई करता है, उसी पेशन गोई को, उसी बात को मुकद्दस जो है मत्ती रसूल बयान करता है। और यहाँ उसने कहा देखो एक औरत कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। यानी खुदा का बेटा हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, खुदा का बेटा हमारे गुनाहों के कफारे के लिए इस दुनिया में आया और मुझे और आपको बचाने के। अगरचे हम सफर कर रहे हैं, अगरचे हम दुखों में हैं, अगरचे हम तकलीफों में हैं, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, बीमारी है और बहुत सारे मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद खुदा हमारे साथ है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये हालात हमारे मुखालिफ हैं, हालात हम खुश नहीं हैं, हमारे मसाइल जो है खत्म होते जा रहे हैं, इन्हीं लम्हों में तो खुदा हमारे साथ है और वही फिर हमें तकवीयत बख्शता है, वही हमारे लिए रास्ता निकालता है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो खुदा दूसरा रास्ता खोल देता है। ईमान हम यीशु पर रखें, क्योंकि जब हम ईमान रखते हैं खुदा के बेटे यीशु नासरी पर तो वो आसमान के दरीचे खोल देता है। वो हमारे लिए कहाँ से जो है बरकत लेकर आता है, आप सोच भी नहीं सकते। क्रिसमस का पैगाम यही है कि खुदा का बेटा दुनिया में आ गया, यीशु मसीह दुनिया में आ गया, इमैनुअल दुनिया में आ गया, कि खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का बेटा आपके साथ है। खुदा खुद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। और मसीह खुदावंद ने मत्ती इंजील की उसके आखिरी बाब में कह दिया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक दुनिया है मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ हूँ, बशर्ते कि हम उसे कबूल करें, हम ईमान रखें कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा खुदा है। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, आपके उठना बैठना फर्क हो जाएगा। और जब ईमान के साथ आप मानते हैं तो आसमान के दरीचे खुल जाते हैं, आसमान की रहमत नाज़िल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही तो क्रिसमस की खूबसूरती है कि खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर आपको और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दुखी हैं, परेशान हैं, मसाइल कम हैं, दुखों में पड़ जाते हैं, बीमारी है, कभी डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट अच्छी नहीं आई,
कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हम ईमान रखें कि खुदा का बेटा जो कादिर मुतलक खुदा है वो हमारे साथ है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और गुलाम ने जिस्म अख्तियार किया और हमारे दरमियान में आ गया। जब खुदा का कलाम हमारे दरमियान में आ गया, खुदा का बेटा हमारे दरमियान में आ गया, तो फिर मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी रहमत से हमें मामूर करता है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमारे साथ है। और आपको मालूम है कि जब दानियल के दोस्तों को जो है आग की भट्टी में डाला गया, और जब वो आग की भट्टी में डाला गया तो वो चाहते तो इनकार कर सकते थे, वो चाहते तो उनके पास एक ओहदा था, रुतबा था, शान थी, पैसा था और इख्तियार था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, हम इसके सामने नहीं झुकेंगे, हम झुकेंगे तो अपने खुदा के सामने झुकेंगे, हमारा सजदा सर झुकेगा तो अपने मालिक के सामने झुकेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाह ने कहा कि इनको आग की भट्टी में डाल दो, और कलाम में लिखा है कि उन्होंने 7 गुना आग ज्यादा कर दी, और इतनी आग थी कि वहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास नहीं, उसके 5-10 मिनट फासले पर नहीं खड़ा हो सकता था, इतनी ज्यादा उन्होंने आग भट्टी बढ़ा दी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे साथ है, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता। अगर आपको तजर्बा है खुदा का, तो खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा आपके साथ है। अगर आपके पास ये हिस्ट्री है, आपके पास एक हिस्ट्री है कि खुदा मेरे साथ है, तो फिर खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यही हुआ कि खुदा ने दानियल के दोस्तों को किस तरह बचाया, और कलाम में लिखा है कि खुदा खुद उस आग के बीच में आ गया और खुदा ने उनको अपने हाथों के नीचे ले लिया, उनके ऊपर अपने हाथ कर दिए, अब आग उनको छूती नहीं, और उनको भी नहीं पता कि तीसरा शख्स, चौथा शख्स हमारे साथ है, खुदा मौजूद है। जो बाहर खड़ा था बादशाह, वो देखता है कि मैंने 3 डाले और चौथा भी नजर आ रहा है, और चौथा जो था वो खुदा था। खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, ये उसका वादा है। और यही तो क्रिसमस की खूबसूरती है कि खुदा हमारे साथ है। आज पूरे मज़ाहब देख लें, जितने भी मज़ाहब देख लें, कोई आपको नहीं कहता कि हम खुदा हमें ढूंढता है। खुदा मसीहत के अंदर हमें यह पैगाम मिलता है कि खुदा हमें ढूंढता है। और कलम काशिफा में लिखा है, देख मैं दिल के दरवाजे पे हुआ खटखटाता हूँ, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, मैं उसके साथ रफाकत रखूंगा, मैं उसको बरकत दूंगा। आज दुनिया खुदा को ढूंढ रही है, खुदा हमें ढूंढ रहा है। कलाम में लिखा है कि इमैनुअल दुनिया में आ गया। और मुकद्दस ईसाया 60 उसका 60 बाब में कहता है कि देख दुनिया का नूर दुनिया में आ गया, उठ मुनव्वर हो कि तेरा नूर आ गया दुनिया में, खुदा का बेटा दुनिया में आ गया। मेरी और आपकी परेशानी खत्म हो गई जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। हमारे मसला यह है कि हम अपनी आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं। हम लोगों को ढूंढते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, लोगों से चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकार और मुझसे फरियाद कर, तो देख मैं तेरी मुसीबत पर तेरा रहम करता हूं कि नहीं। आज पूरी दुनिया सफर कर रही है। खुदा का बेटा जो हमारी निजात है, जो इमानुएल है, खुदा हमारे साथ है। आज मैंने और आपने नहीं डरना, हम इन परेशानियों से नहीं डरना, इन मुसीबतों से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि खुदा का बेटा हमारे साथ है। आप अपनी आंखों को बंद करके और महसूस करें और खुदा से कहें कि खुदा तू हमारी रूहानी आंखें खोल, और आप देखेंगे कि खुदा आपके साथ है। और इसीलिए वो कहता है कि जब हम थक जाते हैं तो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको निजात दूंगा। जब खुदा का बेटा हमें जिंदगी देने के लिए आया है, खुदा का बेटा हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आया, उसने गुनाह पर, उसने अबलीस पर, उसने मौत पर, उसने तारीकी पर फतह पाई है, तो वो हमारे साथ है। मुकद्दस पौलुस जो कुरिन्थियों के खत में कहता है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप किया अपने बेटे के वसीला से। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा का बेटा इस दुनिया में आ गया है और मुझे और आपको बचाने के लिए। अब शर्त यह है कि हमने अपने आप को खुदा के हाथों में कैसे देना है। हम दुनियावी कामों में पड़े हुए हैं, हम दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हैं। आज हर शख्स पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, हर शख्स जो है वो वसाइल ढूंढ रहा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहले तुम ढूंढो खुदा की बादशाही। ये पैसा, ये इज्जत, ये दूसरे मुल्कों में जाना, अमेरिका, लंदन, कनाडा में सेटल होना, ये सब खुदा के हाथ में है। जब आप खुदा के हाथ में अपने आप को दे देंगे तो फिर ये सब चीजें कोई माने नहीं रखती। माने रखता है कि यीशु के साथ दोस्ती,
पाकरू की मामूरी, और जब आपके अंदर पाकरू की मामूरी आ जाएगी, खुदा का बेटा आ जाएगा, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार नहीं हूँगा, मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तू मुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। बहनों और भाइयों, ये वक्त है खुदा की हुजूरी में झुकना, पर्सनल अपना टाइम खुदा के साथ गुजारें, और आप फिर देखेंगे कि किस तरह बरकत आप पर नाज़िल होती है। हम इसलिए दुआएं नहीं करते, हम इसलिए खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, हम इसलिए चर्च नहीं जाते, हम इसलिए चर्च नहीं जाते कि हमें बरकत मिलेगी, हम इसलिए नहीं चाहते चंदा देते हैं कि हमें बरकत मिलेगी, हम इसलिए बातों में नहीं जाते कि खुदा हमें ब्लेस करेगा, हमें हेवन में जगह देगा। हम इसलिए जाते हैं कि हम ऑलरेडी ब्लेस हो चुके हैं, हमें खुदा ने बरकत दे चुकी है, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आपको ये मौका है, और खुदा बार बार हमें ये चांस नहीं देता। कलाम में लिखा है आज मकबूलियत का दिन है, आज उसे कबूल करने का दिन है। अगर आप उसे खूब कबूल कर लेते हैं और आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, तो आप देखेंगे आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आपके हालात चेंज हो जाएंगे, बशर्ते कि खुदा स्लोली का खुदा है। खुदा एकदम का खुदा नहीं है कि एकदम खुदा ने चुटकी बजाई और आपके हालात बदल गए, क्योंकि एकदम जो चीज़ बदलती है वो इंसान को उसी तरह बर्बाद कर देती है जिस तरह वो जो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो उसके परेशानी होगी। खुदा हमें वक्त के साथ बरकत देता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा 1000 बरस खुदा के एक दिन के बराबर है। खुदा का एक दिन हमारे 1000 बरस के बराबर है। और अगर हम देखें तो खुदा की एक दिन की बरकत हमारे 1000 बरस के बराबर है। अगर खुदा हमें एक दिन बरकत देता है तो हम 1000 बरस तक हम खुदा की बरकतें ले सकते हैं, बशर्ते आपको एक तजर्बा हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर आप खुदा को नहीं जान सकते। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते आपको पता नहीं है कि खुदा हमारे साथ है। मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है खुदा का बेटा दुनिया में आ गया, खुदा का बेटा दुनिया में आ गया, इमैनुअल दुनिया में आ गया। आज मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है कि हमें कोई बचाने वाला है, हमें तसल्ली देने वाला है, हमें 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 रहनुमाई करने वाला है, हमें गाइड करने वाला है, हम पर रहम करने वाला है, हमें फजल में लेकर जाने वाला है। खुदा हमें फेवर देता है, और वो फेवर क्या है? वो फजल है जो खुदा अपने बेटे की सूरत में बख्शता है। आज हम खुशी मनाएं, शादमान हो, क्योंकि हमें बचाने वाला है। जब हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, किसी के पास मत जाएं, पागरुट से के सामने झुक जाएं, घुटनों पे झुक जाएं। जब आप घुटनों पे झुक जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि जो दुआ घुटनों के साथ और आंसुओं के साथ की जाती है, आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपके बच्चों को बरकत देना चाहता है, खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करना चाहता है, और खुदा अपने लोगों पर अपनी बरकत करना चाहता है। खुदा आप सबको बरकत दे अपने फजल में, अपने रहम में, और आपकी जिंदगी में तब्दीली लाए। हम दुआ करेंगे और सारे अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएं। खुदावंद आसमानी पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे मस्सा में आते हैं। खुदावंद जितने भी लोग बहन भाई ये सुन रहे हैं, खुदावंद तूने तौफीक दे कि वो तुझे जाने और अपनी जिंदगी तेरे सामने रखें, और ये कहें जिस तरह मुस्लिम बेटे ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने बाप के घर ले जाऊं। खुदावंद हम गुनाहगार हैं, हम तुझे अपना मालिक मानते हैं, अपनी जिंदगियां तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में अपने आप को छुपाते हैं, तेरे लहू का मसा अपने लिए मांगते हैं। और जितने लोग हैं खुदावंद तू उन सबको अपने लहू की बारिश कर, इन सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, इस ईमान के साथ कि खुदावंद तू कादिर मुतली खुदा है, तू तब्दीली कर देता है, तू जिंदगियां बदल देता है, तू बीमारियों को दूर कर देता है, तो अपने फजल से हमें मामूर कर देता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं खुदा कलाम सुन रहे हैं, तो इन सबको बरकत दे, इन सबको तेरे यीशु नाम से खुदा हर बीमारी हर परेशानी तेरे यीशु नाम से जाती रहे, और तेरा मसा इन पे छा जाए, और खुदा हम तेरे नाम की ये गवाही दे सकें कि देखो उस कादर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इन सबको बरकत दे खुदा। जितने भी लोग तेरे कलाम सुनते हैं खुदावंद तू इनके घरों पर, इनके रोजगार पर, इनके बच्चों पर, इनके खानदानों पर खुदावंद जितने बंद दरवाजे हैं खुदावंद तू खोल दे। खुदावंद तुम सब पर रहम कर, अपने फजल वाला हाथ बढ़ा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन।
Thank you.